Om Sri Chinmaya Sadgurave. Though Yamaraj, the Mrityu Devata, the Lord Death, has given the boy only 3 boons. He encashes the very first one in favor of his father. This action indeed clearly throws a lot of glorious light on the character and temperament of the boy. Though he is now in the higher realms of death, he is first and foremost a dutiful son, and so the very first boon is utilized in bringing peace and joy into the heart of his father. Nachiketa wants his father to enjoy comfortable nights without regret of having sent his son to the abode of death, and weighing very uh, heavy upon his conscience. A loving consideration for the feeling of one's own parents and guardians is the beginning of an individual's expansion, which ends only when his mind can give an equal place for even the inanimate objects of the world. A man of perfection is he who, in his state of experienced godhood, has expanded to become the all and has come to feel for not only his own relations or countrymen, but equally for all. That is, such a perfect master alone is a true citizen of the world with a perfect universal love. To achieve this acme of perfection, a sadhaka must begin with a consideration and love, selfless and all giving, first towards his parents and relations. These are days of cruel misunderstandings when, in the name of religion, people sedulously practice many a vulgarity. Of them, none is so detrimental and sad as the misplaced enthusiasm with which youngsters, when they have made a mess of their life by unintelligently living a span of licentiousness and sensuous freedom, suddenly decide to run away from it into the open portals of sannyasa. Such runaways and moral desperados
cannot succeed in this highest vocation called sannyasa. They are ever misfit, not only in society for material life, but equally so in the jungle for spiritual seeking and steady self perfecting. In the character of Nachiketa, we have a clear warning against this misconception of ours. So, we are discussing the mantra. I think you can remember. This is the 10th mantra. Shanta Sankalpa Sumana Yatha Syad Vitamanyur Gautamamabhimrityo तत्प्रशिष्टं माभिवदित् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे. I hope you can remember that Yamaraja has given this opportunity to Nachiketa that you have done enough penance. Your chitta is absolutely शुद्ध. हमारे आध्यात्मिक राज्य, उनका अधिकार अर्जन करना चाहते हो, if you want to have your right in the dynasty of spirituality, so you need to fulfill some conditions, which is social condition and moral condition. So that is the thing. When नैतिक और सामाजिक शर्त आप पूर्ण कर सकते हैं, तो you must have some right in the dynasty of spirituality. In the scripture, it is written, Rinatraya apakritya. Rinatrayam apakritya. You have to meet up your date, complete your dates. If you want to reach that spiritual aim, what is that three ऋण जिनको शोध करके ही, पूरा करके ही आप इस आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान की पथ में जा सकते हैं. सो आप देखिए, नचिकेता को 3 वर मिला था यमराज से. तो इसमें से पहला वर बालक नचिकेता, जो पितृभक्त भी थे, उन्होंने अपने प्रयोजन के लिए एक भी वर नहीं मांगा. द फर्स्ट वर, द फर्स्ट boon he asked, not with any selfish iota, selfish agenda. नचिकेता पितृभक्त थे. पहले ही उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता
और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना की। और वर प्रार्थना, 3 वर मिला है, उसका एक क्रम है। तो इस क्रम के द्वारा श्रुति माता ये भी दिखाने चाहते हैं कि इफ यू आर नॉट परफेक्ट इन योर वर्ल्डली लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ, यू हैव नो राइट इन योर पारमार्थिक जीवन। हम लोग सोचते हैं कि अगर पारमार्थिक जीवन मिल जाए, आई एम वेरी इंडिफरेंट इन माय फैमिली लाइफ, इन माय फैमिली ड्यूटी, इन माय अदर ड्यूटीज, आई एम वेरीली इंडिफरेंट एंड aloof. Shruti Mata is showing unless and until you become perfect in your जागतिक जीवन, पार्थिव जीवन, फैमिली लाइफ, आप पारमार्थिक जगत की अधिकारी नहीं बन सकते। यही शर्त है। देखिए, हम लोग कभी कभी एक दूसरे को बोलता हूं कि अरे आश्रम जा रहा है, बस तुम्हारा फैमिली तो गया, बेटा सन्यासी हो जाएगा। हमारे हर जीवन में एक परफेक्शन की जरूरत है। इफ वी आर नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीच दैट थिंग्स। मेरा पिता प्रसन्न हो जाए, मेरे प्रति प्रसन्न, माता पिता को अखुशी करके, दुखी करके कोई व्यक्ति का साफल्य नहीं आ सकता। Here success means an all dimensional fulfillment, not only earning money. अगर पैसा सब कुछ होता तो धनी लोग ना तो डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, मंदिर के पास जाते। धन से सुख नहीं मिलता। अब जितना धन कमाए हैं, ये सब आपका पुण्य फल है। पुण्य खत्म हो जाएगा, धन भी कहाँ चला जाएगा। कितना बड़ा बड़ा कश्ती को मैंने डूबते हुए देखा। लेकिन ये जो साफल्य आध्यात्मिक राज्य की, ये शांति के अंदर छुपे हुए हैं। शांति एक डिफरेंट सब्जेक्ट, इसके साथ ना तो धन की संबंध है, ना किसी के संबंध। इट्स अ मेंटल एडजस्टमेंट, इट्स अ मेंटल कंडीशन, and that comes very easily if because of me others are happy.
if I am perfect in my family life, because in the family life, a lot of balance is required. Everyone is not equal. Their nature is different, their demand is different, their activities are different. So there a lot of adjustment is required, not compromisation. It's adjustment. Lot of adjustment. Holding up your ideals and ideologies. Self-sacrifice is required in the family life. बालक नचिकेता इतना कम समय में कैसे ये सिद्धांत ले लिया, ये बड़ा आश्चर्य बात है। ये साधारण बालक नहीं, पार्थिव वर्ग की एक क्रम इन्होंने मेंटेन किया। हर व्यक्ति की पहला उद्देश्य रहता है जागतिक सुख, और मेरे चार पास जो व्यक्ति अवस्था है वो खुश रहे। एक ही मकान में रह रहे हैं और आपके कारण सारे लोग अखुशी है, और मैं आध्यात्मिक हूं, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे लिए अखुशी क्यों है लोग? बिकॉज ऑफ माई impractical ideas on ideologies and ideals. I want everyone should follow it, और सबको फॉलो कराते 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 कब मैं शास्त्र से बहुत दूर चला गया, ये पता भी नहीं चला। So self-reflection is very required in this spiritual field. नचिकेता समझ लिया कि यम के घर से मैं वापस आऊंगा तो मेरा पिताजी मुझे पहचान पाए, क्योंकि मैं जिनको जितना भी प्रेम करूं, मरा हुआ व्यक्ति, जलाया हुआ व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, ये मेरे पास कोई खुशी की बात नहीं। हम लोग ज्योतिष तांत्रिक ये सब के पास जाते हैं कि भाई ये बीच बीच में रात में शब्द हो रहा है, मे बी इट्स आवर हेलुसिनेशन ऑफ माइंड। लेकिन नहीं, बाथरूम करने गया तो देखा वो खड़ा है। ये सब मेंटल हेलुसिनेशन। हम लोग खुश नहीं होता। नचिकेता वॉज वेरी प्रैक्टिकल कि पिता दुखी हो या कुछ भी हो, मैं तो चला आया। अब मैं जब वापस जाऊंगा, मेरा पिताजी मुझे एक्सेप्ट तो करेगा, मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं होगा। उस दिन बोला था ना, ये एक व्यक्ति का एक ही वर मिला था, तो उन्होंने मांग लिया कि मैं मेरे पोता के साथ और पूरा खुश परिवार के साथ सोना चांदी की थाली में भात
खाना चाहता हूँ। तो देखिए पूरा के पूरा जितना हमारा इच्छा रहता है सब कुछ एक वर में आ गया। तो पहला वर था इस जगत के लिए जागतिक सुख। और यमराज देखा कि ये देना कुछ कठिन बात नहीं। यथा पुरस्ताद 11, मंत्र नंबर 11। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रशिष्टः सुखं रात्रि सहिता वीतमन्युः त्वान् वदृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रशिष्टं प्रशिष्टः सुखं रात्रिशयिता वीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। इसके उत्तर में यमराज ने बताए आरुणि मतलब अरुण की पुत्र, औद्दालकी ही मतलब तुम्हारा पिताजी का नाम है उद्दालक। मत प्रशिष्ट पुरस्तात् यथा तथा प्रतीतः। मत प्रशिष्ट मेरे कृपा से, मेरा वर से पूर्व में, पहले यथा आसित जैसे उन्होंने स्नेहशील था, बहुत लविंग फादर था तुम्हारे पास, तथा ऐसे ही प्रतीत उन्होंने तुमको पहचान पाएंगे और तुम्हारे प्रति भविता ऐसे ही स्नेहशील रहेंगे। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम तदृशिवान। मृत्यु मुखात मृत्यु के घर से, यमराज के पास से, प्रमुक्तम मतलब लौट के वापस आके, त्वाम तुमको, ददृशिवान देखकर, वीतमन्यु उनका थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आएगा। रात्रि ही सुखम सहिता रात में बहुत सुख का सैया होगा। मतलब नो स्लीपिंग पिल्स आर रिक्वायर्ड। या ये कैसे हो गया, वो तो वापस चला आया था, लेकिन फिर भी कैसे ऐसे हुआ। सो थ्रू माई फेवर औद्दालकी, Aruni, your father, will recognize you and will be possessed of affection as before. When he sees you released from the mouth of death, will lose his anger and will sleep peacefully at night.
In this mantra, Mrityu Devata, Lord Death, is blessing the boy with the fulfillment of all demands in all their details. Nachiketa's father has four names, as is evident from the page of this Upanishad. First one was Gautama. Second one is Audalaki. Third one is Aruni. Fourth one is Vajasravasa. He was the son of Uddalaka and an adopted child of Aruna. Bhagwan Shankaracharya ji has written a beautiful commentary on that. मृत्यु ने बताए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पिता की बुद्धि पहले जैसे बहुत ही सुंदर, प्यारे, मासूम था। तुम हमारे यहाँ से वापस जाने के बाद भी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे प्रति ऐसे ही रहेंगे। हम लोगों का शंका होता है, अच्छा, अगर 10 साल के बाद मैं वापस आऊं तो तुम मुझे पहचान पाओगे ना? तुम एक ही जैसे हो। हम लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं। हम हमारा बच्चे को हर वक्त छोटा ही देखना चाहता। ये हमारे इनबिल्ट डिमांड है। और लोग मुझे प्रेम करे, लोग करे या ना करे, मेरा माँ बाप, मेरा निकट, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, माई चिल्ड्रन, दे आर माई वर्ल्ड। गृहस्थ लोगों का ऐसा ही होता। गृहस्थ लोगों का बाहर के बारे में ज्यादा ध्यान रहते हुए भी घर के बारे में बहुत चिंता रहती। जितना भी पुरस्कार मुझे बाहर मिला, जितना भी सम्मान, मेरा स्त्री इसके ऊपर क्या बोल रहा है? हाउ शी अप्रिशिएट्स इट, हाउ शी एक्नॉलेजेस मी। स्त्री का रोल निभाना इतना आसान नहीं। A husband always needs that his wife will support him in all dimensions. A wife also needs the same thing. बचपन में बच्चों का भी ऐसा ही हालत होता है कि मम्मी ने क्या बताया। ये जीवन का रीत है। यहाँ पर उद्दालक और उद्दालकी एकार्थवध। भगवान शंकराचार्य जी ग्रामर बोल रहे हैं अपने भाष्य में। उन्होंने बोल रहा है कि उद्दालक शब्द में तद्धित ईंग प्रत्यय योग करके उद्दालकी, औद्दालकी पद हुआ है। और अरुण की पुत्र आरुणी,
छोड़ दीजिए, ये बहुत ही दूसरा डायमेंशन में है. इफ एनीवन वांट्स टू लिसन टू शांकर भाष्य, आई कैन. द्यामुष्यायनो वा मत्प्रशिष्टः मयानुज्ञातः सन उत्तरा अपि रात्रिः सुखं प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्ता. देखिए, नचिकेता की जो पार्थिव जागतिक विषय धर्मराज उसी वक्त पूर्ण कर दिया कि मेरा पिता माता, मेरा फैमिली मैन संतोष में रहे. ये सबसे बड़ा बात है. नचिकेता सन्यासी की प्रतीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक सन्यासी जो मृत्यु को डरे नहीं, वो भी चाहते हैं कि मेरे फैमिली में जितना लोग है, दे रिमेन हैप्पी. शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि ये हमारे इहलोक की सारे कर्मफल की, अच्छा कर्मफल की उपलक्षण है. यही इस मंत्र का अर्थ है. तो औद्दालकी ही आरुणि ही, यहाँ पर व्याख्याकार कमेंटेटर बोल रहे हैं कि उनका नाम हो सकता है आरुणि, उद्दालक की पुत्र, और हो सकता है उद्दालक उनका नाम है, आरुणि की पुत्र, अथवा उद्दालक आरुणि दोनों का ही पुत्र. तो दोनों व्यक्ति का पुत्र कैसे हो सकता है ना. एक व्यक्ति अगर दत्तक ले ले, अडॉप्ट कर ले, तभी हो सकता है. तो दोनों पिता ही पितृतुल्य है. तो वो उभय पिता का ही पितृ कार्य कर सकते हैं. इसीलिए ऐसे ही एक व्यक्ति दोनों पिता की संतान हो सकता है. यमराज ने बताया, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीतः. तुम्हारे पिताजी पूर्व में पहले जैसे तुम्हें प्रेम करते थे, स्नेहपरायण थे. तुम यहां से लौटकर जब वापस घर जाओगे, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचान पाएगा. क्योंकि नचिकेता क्या मांगे, नचिकेता की चाहत क्या था, बोन डिजायर क्या था. शांत संकल्प सुमना. मेरा पिताजी मुझे देखकर बहुत आनंदित होगा, शांत होंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे. वही होगा नचिकेता. लेकिन हमारा पिताजी बहुत एंग्सस रहता है, एंजाइटी में बहुत परेशान रहते हैं. सब एंजाइटी चला जाएगा. नचिकेता, तुम चिंता मत करो. वीतमन्यु हो, तुम्हारे प्रति सारे क्रोध जैसे था उनका, सब चला जाएगा. एवं त्वां ददृशिवान, तुम्हें उन्होंने देखकर
मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, यारे मेरा बेटा मृत्यु के मुंह से बच के आए, वापस आया। नचिकेता, ये पहली बार लाभ किया। इसके बारे में ज्यादा विस्तार में उपनिषद में भी नहीं बताए। इसका तात्पर्य क्या है ना, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा माँ बाप भाई बहन का सुख चाहते हो, ये हो जाएगा। तुम्हारा घर में शांति होगा, तुम्हारा पिता तुम्हें वापस पाकर आनंदित होंगे, तुम्हें प्रेम से ग्रहण करेंगे। अब नचिकेता सेकेंड बून में मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में सुख की कामना कर रहा है। व्हाट ए वंडरफुल क्रम! फर्स्ट सुखम इन दिस वेरी वर्ल्ड, इन सेकेंड boon he will ask, he will secure sukham in the heaven. That we will see in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Guru Bhyo Namah. Harihi Om.